new episode where again we are going to pick up those threads and elements which can help us to evolve and to understand the demand, not only just of the question, but maybe helping ourselves in the preparation. And maybe one can say if you are doing preparation at this time with the best of your effort, then also you will do service someday in the best of your abilities. There are a lot of other elements, a lot of other jugaad, but then it depends how you are satisfied, what are your moral values, and how much zeal and passion do you carry. So, with some ideas, let's start and see how FEMA is an improvement over FERA. Now, we know that this has been evolving over a period of time since post liberalization time. In fact, it becomes very, very important. So, FEMA 1919 Act was part of the structural reforms of 1991 to align the foreign exchange market with globalized world potential challenges and ensured resilience. So keywords are also visible, keywords and certain words are also aligned, so that's fine. An improvement over FERA, so good linkage. Liberalize the constraints in forex market, shift towards floating exchange rate, a more transparent and accountable method. Market forces of demand and supply. So second word could have been little linked better, but then keyword is emerging obviously that we are able to say what we are trying to say. Exchange rate diversified against a basket of currencies, ensuring stability and strength of rupee. Forex reserves as a result boomed, which included gold assets, foreign currency (SDRs), liberalized current account convertibility, which later turned fully convertible, allowing large inflow of FPI, and balanced role of RBI's intervention to ensure minimum volatility in exchange rate. Over a period of time, demand for full convertibility of capital account has been raised, and multiplicity of regulators leads to delays and confusion, hampering smooth growth of capital market. Therefore, it's time to revise the FEMA 99 and establish a unified regulatory authority which will be paving way for the full convertibility of rupee. And it will be a long drawn time drawn process ऐसा करके आप खत्म कर सकते हैं. तो ठीक है, I think fair enough and good justice had been done. We can't as such say. बस एक ही चीज हो सकती है कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स थे, जो लूप होल है बेसिकली, जिसका वो जो मतलब मैं कहूंगा जो मिसयूज होता है या जो नॉर्म्स का वायलेशन है जो नॉर्म्स का, दैट इज टू बी सीन. सो बस वो थोड़ा सा है, बाकी एलिमेंट इज देयर. एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना in agriculture productivity gain. I think a very specific question and demands clarity of thought and understanding. The role of factor market is extremely crucial in growth of agriculture sector in India, as it is mostly subsistence based. Okay, agriculture employs 2/3 of labor force with only 16% of contribution to GDP. Fine. Availability of water supply on a sustained basis is one of the factors ensure good yield. So अगर ये 150 वर्ड्स का आंसर है तो हमने पहले 20-30 वर्ड मतलब हमारा जो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ रहा है, अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा अगर हम ध्यान से देखते तो एक्सप्लेन द बेनिफिट्स, तो यानी कि हमें जंप करना था. मतलब बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट, आई लाइक इट. लेकिन राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना कैसे जो फैक्टर मार्केट है कृषि, मतलब फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इरिगेशन पोटेंशियल है. इरिगेशन तो उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ही. सो यू पुट इट इन इकोनॉमिक वे तो बिल्कुल सही है. लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई ऑन सस्टेन बेसिस, तो हमने जो है थोड़ा सा ज्यादा जंप हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने 3-4 लाइन एक्स्ट्रा ले ली. लेकिन एक्सप्लेन द बेनिफिट्स कह रहा है. तो अब सबसे पहले तो राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना, तो इरिगेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद एग्रीकल्चर आना चाहिए. लेकिन सबसे पहले ये नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से. सबसे पहले तो बात ये है कि राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना है, यानी कि दिस स्कीम फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स इन जो इरिगेशन पोटेंशियल है, जो हमारे इंडिया का इरिगेशन पोटेंशियल है, और जिसमें हमें यहाँ पे डेटा देना चाहिए था दैट एक्चुअली जो हमारे सोर्सेज हैं इरिगेशन के, द फॉर्मल सोर्सेज और व्हाटएवर अदर सोर्सेज, दे आर लेस एंड जो रेन फेड इरिगेशन है वो ज्यादा है बेसिकली. ये सच्चाई है ये. और उसके हिसाब से फिर जो है, जैसे दूसरा आपने बोला रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन मानसून फॉर रेनफीड, बिल्कुल सही बात है. दोनों एलिमेंट सही हैं, लेकिन दूसरा एलिमेंट शायद पहला आता, पहले में भी थोड़ा सा डेटा आता हल्का सा, और फिर उसके बाद आप बेनिफिट बाद में. सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोवाइड्स सब्सिस्टेंस फार्मर्स को एक होप देता है
बेसिकली। होप क्यों दे रहा है? क्योंकि सिंचाई अपने आप में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, और वो इतनी महंगी पड़ती है कि किसान तो डेट रिडन ही है बेसिकली। तो इसीलिए सरकार को, यानी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जो 60-40 का रेशियो है, और अगर आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट और बाकी जगह वो 90-10 का रेशियो हो जाएगा, तो वो एलिमेंट एक तो लेके आना पड़ेगा। और ऊपर से हमें ये फैक्टर यहाँ पे लाना पड़ेगा, डेटा, व्हेन वी आर रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर, दैट हाउ मच इज द इरिगेशन पोटेंशियल, हाउ मच पोटेंशियल इज रियलाइज्ड, एंड देन उसके अंदर जो सिंचाई के जो मतलब सिंचाई सिर्फ पानी नहीं है, टाइमिंग है उसकी, एंड देन क्रॉप इंटेंसिव, अगर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं तो सिंचाई भी कुछ नहीं कर पाएगी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वी स्पीक अबाउट नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें। तो बहुत अच्छा लिखा, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाली बात भी आई, और रेगुलर इनकम वाली बात भी आई। तो ये सारा मतलब आई थिंक एक लेयर बहुत अच्छी है, ये मैं तो लेयर मानूंगा इसको कि बहुत अच्छी लेयर है ये, 2 लेयर आ गई बेसिकली। और लेकिन जो एग्जैक्ट जो स्कीम को जो पूछ रहा है, वो हमने प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया। तो 50% मार्क्स से अगर हम बात 35 to 40% मार्क्स ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो हमें ये अप्रोच और एटीट्यूड डेवलप करना है कि एक तो जो पूछा है, हमें फोर्सफुली अपने माइंड को उसी में से निकालना है, हम इधर उधर ना जाएं, क्योंकि हमें स्कोर मिलने के चांसेस थोड़े रहेंगे। और हम ये एग्जामिनर को इंप्रेशन नहीं देना चाहते दैट वी कैन राइट अ लॉट and we can write anything. We want to give impression that we want to something, if we are writing, then we are very much focused into it, and we are writing it very thoughtfully. We do not want to give impression that we are writing it easy. So you have done a good job here, but then राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना, तो उसके अंदर जो उसको अपग्रेड करने की बात आती है, उसके लिए कितना बजट एलोकेशन होता है, फिर उसके बाद हर राज्य का अलग है। जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे अभी जैसे अभी आंध्र तेलंगाना की हम बात करें, कालेश्वरम, वो एक बहुत ही बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, जिसको इतने सालों से कर रहे थे। अब सरकार चेंज हुई, हमने बोल कालेश्वर बैरेज भी है, तो वो लास्ट में सिंचाई में ही जाना है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है एवरी इन सम वे और अनदर। तो वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग बिग, लाइक दीज बिग प्रोजेक्ट्स आर देयर, एंड हाउ दे आर रियली बेनिफिटिंग। और क्योंकि किसान को जो है, हर जगह तो हम डीबीटी नहीं दे सकते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो नहीं हो सकता ना। तो और आपको एग्रीकल्चर इरिगेशन बेनिफिट जो जो है एआईबीपी, जो पहले सरकार मतलब 70s 80s 90s से हमारे प्लान रहे, फिर ऑल इंडिया हम लिंक करने की बात करते हैं कि भाई हम व्यूवर्स को लिंकेज भी दे देंगे। तो आप फ्यूचर सजेशन भी दे सकते हो कि भाई मतलब वो योजना है, योजना कैसे और प्रभावी हो सकती है। सो हमें पता होना चाहिए योजना का, बट देन इन एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है, बट देन आई वुड नॉट डिस्करेज टू से कि कुछ लिखना ही नहीं है उसमें भी, लेकिन फिर भी डेटा लेके कि कैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकेगी वो सिंचाई, मतलब सिंचाई वन मोर क्रॉप पर ड्रॉप आपने बोला बहुत अच्छा है। उसके अलावा वो क्या वो चेक डैम्स बनाने की बात करता है, कि क्या वो गांव के पॉन्ड्स हैं वो रिजुविनेट हो रहे हैं, या कोई, क्योंकि साउथ इंडिया में होगा तो टैंक होंगे, देयर विल बी टैंक्स, नॉर्थ इंडिया का होगा तो कैनाल्स होगा। तो ऐसे करके हमें थोड़ा सा विजुलाइज करना है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। So it is good. Last point is also very good. Zero-based budgeting farming. This is also good. So to suit the needs of new market-oriented economy, old structures were dismantled and new structure replaced. Among them was FERA. चलो ठीक है भाई, fair enough. FEMA is an improvement how regulate foreign exchange market, while FEMA geared towards management and orderly development of. So I like the word management and orderly development. ठीक है, चलिए। FERA treated. अब now what the candidate had done here, what she had done is she has just पुट बोथ टुगेदर, बाकी कुछ खास फर्क नहीं है। जैसे मैंने भी बात बोली थी आपको ऑफेंसेस की, फेरा ट्रीटेड वायलेशंस ऑफ प्रोविजंस एज क्रिमिनल ऑफेंस व्हाइल फेमा ट्रीटेड देम सिविल ऑफेंस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी क्लैरिटी। फेरा under FERA, foreign exchange was treated as scarce resource and strictly regulated. Permission of RBI and government was required, while FEMA treats foreign exchange as strategic asset, allowing automatic exchange without permission in most cases. सही बात है। फेरा वॉज सुटेबल फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी, ये तो एक पॉइंट बना है, वो हम भी लिख सकते थे, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट। वो ओपन इकोनॉमी की नीड के लिए फुल अकाउंट कंट्रोलेबिलिटी आपने बात की। इंडिया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है फेमा, सही बात है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजंस के लिए 6 नंबर पॉइंट, आई लाइक इट, मोर सुटेड, तो ये भी क्रिएट किया है। आई थिंक पॉइंट नंबर
5, 6, 7 are just created because you are not writing something else. So you have written couple of very plus points, very, I think I would say very smart points, especially when you are bringing the idea of how SDR और कैसे फॉरेन एक्सचेंज को डाइवर्सिफाई करने की जो बात है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारा कैसे बढ़ा, कैसे उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो फ्लोटेड एक्सचेंज रेट की बात भी कही थी. So I think these are couple of more very common sense points are there, and we are also bringing in our answers these ideas. So couple of things we can pick up, I believe so. राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना मेन एम वाज टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, तो मैंने भी आपको यही बोला. प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर आप भी लिख सकते थे. एंड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, कि भाई आपने अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिया है तो उसको कैसे आपको हेल्प करेगा. क्रिएशन ऑफ फंड टू जनरेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन स्ट्रक्चर, जनरल है, ठीक है. 55% ऑफ एरिया स्टिल डिपेंडेंट, आई टोल्ड यू, जनरल पॉइंट है. इरिगेशन डोमिनेटेड बाय ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिक पंप्स, ये भी क्रिएट किया है. इंडियन प्रोडक्टिविटी इन मेजर क्रॉप्स लो, ये भी जनरल पॉइंट है. रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी जनरल पॉइंट है. सो वही बात है कि मतलब नहीं बता पाए जो असल में स्कीम, जो जैसे मैंने बोला स्कीम नहीं बता पाए, लेकिन लिखना पड़ता. तो मेजर बेनिफिट जैसे लिख दिया, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर ड्रॉप पर क्रॉप, मोर ड्रॉप पर क्रॉप या मोर क्रॉप पर ड्रॉप होना चाहिए. उल्टा होना चाहिए. उसके बाद जो है जनरेट सस्टेनेबल स्ट्रक्चर, जनरेट सस्टेनेबल इरिगेशन स्ट्रक्चर, तो मतलब जनरल पॉइंट्स हैं. तो वही बात है कि गागर में सागर भरना है, मरता क्या ना करता, जो हिंदी के मुहावरे ये इसीलिए बने, मरता क्या ना करता, भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ तो लिख दो यार, कुछ ना कुछ तो हो जाए. तो we get the idea that scheme, any scheme can come up. We will try to just make a point that we are already working on it, and we have already done so many schemes and programs, but then we will rush through all the programs with their data. We'll make a note of it because this is very important, not only for our optional but also maybe in GS also somewhere we can be stuck. So we will do that. It's not a big deal. We can always get all the schemes together. We can get a compendium anywhere and we will just do that. जी सर. So you can share your point, whatever you feel like. So one is related to schemes only, जो structural या foundational schemes हैं of different sectors. हाँ, हर जगह की देखो एक दो स्कीम पता होनी चाहिए, चाहे सारे डिपार्टमेंट की, सारे डिपार्टमेंट की. मैं तो आपको आइडिया होना चाहिए बजट ने कितना परसेंटेज दिया. भाई बजट ने दिया क्या? बजट ने राष्ट्रीय महिला कोष को क्या दिया? बजट ने आयुष्मान भारत को क्या दिया? बजट, क्योंकि आयुष्मान भारत है, जन औषधि योजना है, मोटा मोटा है. हाँ जी. फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई अब डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त हुआ तो वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो जैसे लाडली लाडली योजना, लड़की बहन योजना, ये कितना ले जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कितना दे रही है, इसमें बजट का कितना पोर्शन जा रहा है, आखिर हो क्या रहा है. जैसे अभी अभी कर्नाटका गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि यार हमारे पास पैसा है, हम तो स्कीम, हम प्रॉपर्टी टैक्स और हम रियल प्रॉपर्टी और हम उससे पैसा और इकट्ठा करेंगे. क्योंकि जो उन्होंने 4 4 गृह लक्ष्मी योजना बोल दिया, फ्री बिजली 200 यूनिट बोल दिया, वो कहाँ से जाएगा? पैसा तो चाहिए ना. एट द एंड ऑफ द डे इट्स इकोनॉमिक्स. तो ये हमारे सामने है. तो प्लीज यू हैव टू मेक श्योर एट द स्ट्रैटेजिक पॉइंट दैट कि हमें जैसे फार्मास्यूटिकल है तो हम ड्रग पार्क बना रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए. जैसे वो प्रोडक्शन लिंक्ड इन PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनकम स्कीम है. हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, तो वो अब उसका 2.0 भी आ गया है. टेक्सटाइल के लिए भी है, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर के लिए तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है. तो आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए. ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली एक वर्ड रख, लेकिन दिस परसेंटेज ऑफ GDP, दिस many थाउजेंड करोड़, मोटा फिगर आना चाहिए. ये मतलब कि साइज से एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे. ये अवेलेबल होता है, बल्कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, रोज हम 3 सेक्टर उठा सकते हैं. एक बार गूगल चैट GPT पे लिखोगी भी तो वो अपने आप ही ले आएगा. वो सबसे बेसिक भाषा में ले आएगा. कुछ नहीं करना, बस उसको कॉपी करना है अपने पास. 3 ले लो रोज के, और उसमें भी सीक्वेंस बना लो कि PMO, पहले PMO को ही देख लो कि PMO कौन सी स्कीम्स को डायरेक्टली सुपरविजन कर रहा है जी. बस पहले एक PMO पकड़ोगी, 2 3 दिन तो उसी से सब कुछ बहुत कुछ निकल के आ जाएगा. फिर ऐसी नीति आयोग पकड़ लो. आई थिंक 15 मिनट एक्सरसाइज, नॉट मोर देन दैट. क्योंकि कोई हमें वो कंसल्टेंट थोड़ी ना बनना है उसका. हाँ नहीं सर, वो एक जनरल आइडिया होना. जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, अब बार बार आता है कि 2030 तक न्यूक्लियर, 2050 तक न्यूक्लियर पावर का 100 गीगावाट का टारगेट है, 2070 तक ये है, 2030 तक इतना है.
अब विंड पावर है, अब विंड पावर तो दिमाग में ज्यादा नहीं आता क्योंकि विंड पावर के आसपास हम रह भी नहीं रहे हैं, और विंड पावर हमारे घर मतलब रोज बात नहीं होती, पर विंड पावर भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ जी, हाँ बायोगैस, विंड पावर, and this is, so let's do this exercise जी, every day, and I'll make sure that I'm asking you, हाँ and जी we'll सर, move forward. जी। So apart from that, any other point do you think it's important? अपार्ट फ्रॉम दिस तो सर कोई मेजर पॉइंट तो नहीं मेरे को भी। Okay, जी, wonderful. Thank you very much. And so we believe that clarity of thought, commitment, honesty, going together, toiling together, and definitely for bigger incentives. There is no, there is no second thought about it. It's not about pleasing. It's not about pleasing, or it's not about creating something which is hidden. So I think the journey becomes beautiful when we try to take uncomfortable zone and when we try to solve it. So with this approach and ideas, we'll try to move forward. Thank you very much and see you soon in the next episode.